آپ نے خود کو ابن فاضل کہنا کیوں پسند کیا؟ جب ہم غور کرنا شروع کریں گے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں اگر اللہ نے ہمیں 700 بار نماز کا حکم دیا ہے تو ہمیں کچھ 350 بار غور کرنے کا حکم دیا۔ کیا آپ نے جب سوچنے کا سوچا تو کیا باقی سوسائٹی بھی اس میں تھی؟ ابن فاضل کا مطلب فاضل کا بیٹا، اور میری زندگی پہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا امپیکٹ میرے والد صاحب کا محمد فاضل کا ہے تو ان کا حق بنتا تھا کہ میں خود کو ابن فاضل کہہ رہا ہوں۔ السلام علیکم، I'm سہیرا ساجد and today again welcome to ہم اور آپ with PNY۔ آج اگین ہے ہم فل آف انفارمیشن اینڈ ایکسائٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو آج ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہیں ویری اسپیشل پرسنالٹی۔ ایکچولی ہی از انجینئر بائی پروفیشن، بٹ وہ اس سے کہیں آگے کی سوچ رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ سب بھی سوچیں اور اس سوچ کا جو دائرہ ہے اس کو وسیع کریں۔ ہی CEO آف اسپیئر پارٹ مینوفیکچرنگ فیکٹری۔ تو ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ابن فاضل صاحب۔ السلام علیکم اینڈ وارملی ویلکم۔ جی بڑی مہربانی، شکریہ سر، آپ کا شکریہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کب سے ہم ویٹ کر رہے تھے کہ سر ہمارے ساتھ یہاں پہ آئیں اور ڈسکس کریں ان سب چیزوں کو۔ سر ہم ان سب باتوں پہ آئیں گے۔ سب سے پہلے میں بھی جاننا چاہتی ہوں، ہمارے سر ویورز بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے خود کو ابن فاضل کہنا کیوں پسند کیا؟ ابن فاضل کا مطلب فاضل کا بیٹا، اور میری زندگی پہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا امپیکٹ میرے والد صاحب کا محمد فاضل کا ہے تو ان کا حق بنتا تھا کہ میں خود کو ابن فاضل کہہ رہا ہوں۔ آج کل کے دور میں یہ سوچ جو ہے وہ بہت حد تک کم ہو چکی ہے اور ہم انہی سب ریزنز پہ بات کریں گے۔ سوچ کی ابھی میں نے بات کی تو سر کے بارے میں ماشاءاللہ جانتے ہیں سب کہ سر سوچتے کتنا ہے۔ سر یہ جو سوچنے کا سفر ہے یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ شاید بلٹ ان فالٹ ہے۔ شروع سے ہی آپ سمجھ لیں کہ جب میں بالکل چائلڈہڈ میں تھا تبھی سے یہ سوچنا شروع کر دیا اپنے۔ جب ہم مسائل دیکھتے تھے، کیونکہ ہمارا جو تعلق ہے جس فیملی سے ہے، ہم لوگ بہت ہی ایوریج فیملی سے تعلق رکھتے تھے، تو ہمارے جو ارد گرد مسائل تھے، خاص طور پہ جو وسائل کی کمی یا غربت سے ریلیٹڈ مسائل تھے، تو تب سے میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ان کا کیا حل ہو سکتا ہے، ان کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب ایجوکیشن حاصل کرتے تھے، تعلیم کے لیے اسکولوں میں جاتے تھے، تو پھر بڑی طرح کے سوال پیدا ہوتے تھے۔ مثال کے طور پہ جب ہم خاص طور پہ ہم اپنے معاشرتی علوم یا اس طرح کے سبجیکٹس میں پڑھتا تھا تو اس میں مجھے لگتا تھا کہ یہ جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یعنی میں دیکھتا ہوں کہ میں جس شہر میں یا جس ملک میں رہتا ہوں اس کے اندر جو چیزوں کا چلن ہے، جو ہمارے روزمرہ کھانے کی چیزیں ہیں یا ہمارے جو پہننے کی چیزیں ہیں، اس کے متعلق تو مجھے کوئی علم نہیں دیا جا رہا، لیکن مجھے یہ بتاتے ہیں جی کہ وہ اسکیموز کیسے رہتے ہیں اور منطقہ معتدل آہارہ میں گھاس جو ہوتی ہے وہ کتنی بڑی ہوتی ہے۔ تو میں اس وقت بھی یہ سوال اٹھاتا تھا اپنے اساتذہ سے کہ سر یہ مجھے کیوں پڑھاتے ہیں، اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا میری زندگی میں؟ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں کیا پیدا ہوتا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کیا کھانا چاہیے، مجھے بیماریوں سے کیسے بچنا چاہیے، مجھے کیا پہننا چاہیے۔ لیکن وہ ہمارے اساتذہ کے پاس بھی ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر ان سوالوں کو کوئی جواب نہیں کہ جہاں ہم رہتے ہیں، جو ہمارا لائف سٹائل ہے اس کو ہم نے کیسے بہتر کرنا ہے، اس میں کیا حکمت کی باتیں ایڈ ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو جو ہمارا کھانے کا انداز ہے، جس طرح ہم پاکستانی لوگ جیسے ہم فوڈ کھاتے ہیں، جس طرح ہم اپنے وہ کڑھائی اور اس طرح کی جو پراٹھاز اور وہ مطلب ٹوٹلی ان ہائیجینک فوڈ، تو ہم وہ نہ اس کو ہم تعلیم میں ڈسکس کرتے ہیں نہ ان آپس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ ہم لوگ غور نہیں کرتے نہ اپنے انوائرمنٹ پہ، نہ اپنی چیزوں پہ، نہ اپنے معمولات پہ، نہ اپنے مسائل پہ، کسی بھی چیز پہ بس ایک جو ہماری ڈگر ہے، ایک لگی بندی جو اس کے اوپر ہم چلتے رہتے ہیں۔ اور یہی بات مجھے بچپن سے ہی وہ کھلتی ہے، اور آج تک میرا جو فیلڈ آف انٹرسٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہر چیز پہ غور کریں، اور لوگوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ جب ہم غور کرنا شروع کریں گے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور اس میں پھر ایک بات اور کہ جب ہم نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا تقاضا کرتے ہیں کہ انسانوں سے کہ وہ غور کریں۔ یعنی ایک عام سی بات ہے کہ قرآن پاک میں اگر اللہ نے ہمیں 700 بار نماز کا حکم دیا ہے تو ہمیں کچھ 350 بار غور کرنے کا حکم دیا کہ جی آپ غور کریں، آپ زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور کریں، آپ اپنے ارد گرد غور کریں۔ اور اتنا غور کرنے کے باوجود ہم جو ہیں وہ پھر بھی غور نہیں کرتے ہیں۔ تو بس میرا یہ شروع سے ہی سمجھ لیں یہ بلٹ ان فالٹ ہے، تب سے لے کے آج تک یہی فوکس ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ جو آپ کا جرنی ہے سوچنے کا اور غور کرنے کا،
इसमें बहुत से अप एंड डाउन भी आए होंगे, और जो सोसाइटी है उसने किस तरह से बिहेव किया, और आपने सोसाइटी को किस जगह पे देखा कि क्या आपने जब सोचने का सोचा तो क्या बाकी सोसाइटी भी उसमें थी, सोच रही थी, या आपको लगा कि आप आइसोलेट हो गए इस सोचने के प्रोसेस में? नहीं, आइसोलेट हुए जी, रजिस्ट किया लोगों ने, अब तक करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अभी मैंने आपसे कहा, मैं 8वीं क्लास में था, तो हमारे जो टीचर थे उनसे मैंने ये सवाल उठाया कि सर ये जो चीज़ें आप हमें पढ़ाते हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये ज़िंदगी में कभी काम आनी चाहिए। तो उनका जो रवैया था, उन्होंने मुझे कहा कि जी बेटे आप बहुत सही ना, आप उठे और क्लास से बाहर चले गए। तो ये मतलब ओवरऑल जो हमारा भी, और इस तरह एक बार नहीं हुआ। इवन यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ता था तो तब भी हमारे कई मेहरबान टीचर ऐसे थे जो मुझे कहते थे ये बेटा आप क्लास से बाहर। तो सर आप फिर डिस्करेज नहीं होते थे कि टीचर ने निकाल दिया क्लास से बाहर, और जबकि आप हैं भी राइट पे, आपका जो पॉइंट है वो वैलिड है? नहीं, डिस्करेज क्यों होना था, और ज़्यादा मजबूत होता ना बंदा, उसको पता है कि मैं ठीक हूँ। और फिर मुझे ये महसूस होना शुरू हुआ कि मैं जो समझता हूँ या जो सोचता हूँ शायद बाकी लोग कुछ अरसे बाद वहाँ पहुँचेंगे, तो इसलिए फिर मुझे और प्राउड फील होना शुरू हो गया, मैंने और ज़्यादा गौर करना शुरू किया। यूथ के बारे में क्या कहेंगे? जो आजकल की यूथ है हमारी, इसको कहाँ देखते हैं आप, कहाँ ये स्टैंड करती है? जी, आप देखें कि जो यूथ है, अगर उसको हम उनके मसाइल को डिस्कस करें या उनकी वैल्यूएशन करें, तो मुझे लगता है कि उसमें पिछले कोई 100 साल में ज़्यादा तब्दीली नहीं आई। अगर 100 साल पहले हज़रत अल्लामा इकबाल ने जो डेफिनेशन की थी कि उन्होंने कहा था कि खून रुलाता है मुझे जवानों की तानाशानी, तो अगर मैं आप देखता हूँ तो मेरा भी यही ख्याल है कि जो हमारी यूथ का सबसे बड़ा मसला है वो तानाशानी, यानी एफर्ट नहीं करना। एक तो बात ये है कि सोचना नहीं, वो तो सिर्फ यूथ का मसला नहीं, वो पूरी सोसाइटी का मसला है। तो बीइंग पार्ट ऑफ द सोसाइटी इनका भी ये मसला है कि वो खुद से गौर नहीं करते। लेकिन अगर आप उनको कोई डायरेक्शन देते हैं, आपने उनको एक नई सोच दे दी, एक जो सोच का बैरियर है उसको क्रॉस करके वहाँ से कोई तखय्युल आप उनको दे दें, तो भी उनकी ये ख्वाहिश होती है कि जी नहीं, आपने ये मुझे जो है वो रॉ दे दिया, इसको पकाएं, इसको तैयार करें, इसको पैक करें और खाने के काबिल करके मेरी प्लेट में रखें। यानी अगर अभी मैं, यानी जो कल परसों मैंने एक आइडिया फ्लोट किया कि जी किस तरह से हम अपनी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं फसलों में, और ये अब जब एक चीज़ को बेसिक आइडिया दे दिया जाए तो उसके बाद लोगों को चाहिए होता है कि वो उसके ऊपर खुद गौर करें। इल्म तक रसाई इतनी आसान है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अब तो जब हम इल्म हासिल करते तो हमें तो लाइब्रेरियाँ खंगालना पड़ती थी, कितनी मतलब किताबों की दुकानों पर जाके हम 2-2 4-4 घंटे किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो लिटरली हम किताबों की दुकानों पे जाके तो 4-4 घंटे वहां बैठ के किताब पढ़ते थे कि जी किताबें महंगी हैं, $20 की, $50 की बुक तो नहीं अफोर्ड। अब तो मतलब इतनी ब्लेसिंग है कि सारा इल्म जो है एक क्लिक पे। उसके बावजूद जो ओवरऑल रवैया, जो 90% यूथ का रवैया ये है कि उनको जब आप एक डायरेक्शन दे भी देते हैं तो भी उसमें एफर्ट नहीं करते, नॉलेज हासिल करने की कोशिश नहीं करते, और उनकी यही ख्वाहिश रहती है कि जी आप ही हमें सब कुछ बताएं और आप ये जो है ना आइडिया, इसको तैयार करके हमें दे दें। और आजकल यूथ तो ये गिला करती भी नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा कि आपका टाइम तो आसान था, अब तो कोरोना, लॉकडाउन ये सब भी आ गया, और एक जो सोशल प्रेशर है वो भी ज़्यादा हो गया। जो कुछ पढ़ा था, स्कूलिंग की थी हमने, ओल्ड स्कूल सिस्टम जैसे भी आप बता रहे हैं, वो भी हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये बात दुरुस्त है कि वक्त एक सा ही रहता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो भी कंपटीशन होता था, तो भी मतलब मेरिट बनते थे, तो भी कुछ लोग मेरिट पे आते थे, कुछ लोग मेरिट पे नहीं आते थे। अभी भी वही सूरत हाल है, कुछ लोग मेरिट पे आते हैं, कुछ लोग मेरिट पे नहीं आते। लेकिन जो फ़र्क पड़ा है ना, वो वही मैंने जैसे कहा कि जब आज से 20 या 15 साल पहले फिर भी कुछ लोग जो है वो कंसेप्चुअल स्टडी करते थे, कुछ लोग जो है वो इल्म सीखते थे, और बाकी लोग जो है उसको याद करते थे, मेमोराइज करते थे। अब ये हुआ है कि अब 90% बच्चे जो मेमोराइज करना शुरू हो गए, बल्कि हमने उसको निज़ाम को इस तरह का बना दिया, हमने जो नंबरों की दौड़ लगाई है उसमें ये मजबूरी बन गई कि इतना वक्त ही नहीं होता कि बच्चा किसी चीज़ को सीखे, वो याद करने को समझता है कि यही दानिशमंदी है। और असातिज़ा भी इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि जी आप बिल्कुल 100% बुक को ही आप रेप्लिका करें तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, और हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है। इस वजह से एक तो ये कि पहले ही हम क्रिटिकल थिंकिंग से वो थे, दूर थे। उसके बाद इस सिस्टम ने, रट्टा सिस्टम ने हमें बिल्कुल ही सोचने से वो कर दिया, ख़त्म कर दिया। आप फिर ये समझते हैं, आपके कहने का मतलब यही हम फिर लें कि हमारे एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉज हैं जिसकी वजह से ये इतना मिस हो रहा है? नहीं, फ्लॉज तो बड़ा छोटा लफ्ज़ है जी।
ये एजुकेशन सिस्टम तो टोटल ओवरऑलिंग मांगता है। इसमें तो मतलब जैसे मैंने बताया ना, मेरा जो कंसेप्ट है वो ये है कि बेसिक एक जो 5वीं तक या 6ठी या 7वीं तक जिसको आप कैरेक्टर ग्रूमिंग कहते हैं या बेसिक सिखाना है, उसके बाद से हर एरिया के हिसाब से बच्चों को डिफरेंट तालीम होनी चाहिए। एक बच्चा जो है वो कॉटन एरिया में पढ़ता है, एक बच्चा जो है वो ये किसी बकरवाल का बेटा है, वो बकरियां सदियों से चुरा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि जो उसको भी हम कॉटन उगाना सिखाएं? या आप समझते हैं कि जो बंदा लाहौर में रहता है उसको ट्रैफिक सेंस होनी चाहिए जितनी ट्रैफिक सेंस लाहौर के बच्चे की होनी चाहिए, क्या स्वात वाले को भी उतनी ही दरकार है? तो मतलब ये एरिया वाइज इसको मतलब जब हर चीज़ इतनी स्पेशलाइज हो गई है, इतनी स्मार्टनेस चीज़ों में आ गई है, तो एजुकेशन में क्यों नहीं? मतलब हम उसको बेसिक चीज़ें पढ़ाने के बाद, जैसे अभी जैसे हम इंजीनियरिंग करते हैं, आपको भी पता है कि कुछ चीज़ें होती हैं बेसिक सब्जेक्ट, तकरीबन 1 साल में सारे इंजीनियर एक से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके बाद अपनी अपनी क्लासों में उसकी स्पेशलाइजेशन हो जाती है। तो यहाँ अगर ये लॉजिक है तो फिर बेसिक एजुकेशन में क्यों नहीं? कि हम बेसिक एजुकेशन में देखें, बच्चों को सफाई का सबक देना है, उसको अखलाकियात सिखानी, उसको सिविल साइंस सिखानी, इंटरेक्शन सिखानी, ये जो 4-5 साल में हम उनको सिखा सकते हैं। उसके बाद हम उनको डिफरेंशिएट करें एरिया वाइज, हैबिट वाइज, एटीट्यूड वाइज। उसके बाद जो उनका एटीट्यूड है, जो उनका एरिया है, जिनका फैमिली बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से उनको एजुकेशन दें ताकि कम से कम वक्त में वो यूजफुल शहरी बने। बिल्कुल सही। अच्छा सर, बताइए, आपका एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप लेडीज को एम्पावर करने में, एम्पावर इस सेंस में कि आप उनके लिए न्यू आइडियाज लेके आ रहे हैं कि वो काम कर सकें डिफरेंट वेज में, उसके बारे में काइंडली बताइए। ये बेसिकली खुशहाल पाकिस्तान के नाम से हमारा प्रोग्राम है। उसके अंदर सिर्फ खवातीन ही नहीं, हम चाहते हैं कि सारे पाकिस्तानी खुशहाल हों, उसमें आदमियों और औरतों सबके लिए, लेकिन उसका एक सेक्शन जो है डेफिनेटली खवातीन के लिए। और उसका कंसेप्ट ये है कि खवातीन हमारी काम करना चाहती हैं, ख़ास तौर पे हमारे साथ इंटरेक्शन में जो गाँव की खवातीन है, लेकिन बात वही कि मौके नहीं है। बहुत से लोग इंथुजियास्टिक हैं, डेस्परेटली काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि क्या करें। और फिर अगर उनको थोड़ा सा हिंट हम देते हैं कि जी ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो फिर उनको ये नहीं मालूम होता कि कैसे करें, उसके लिए वसाइल कहाँ से मुहैया करेंगे। और अगर हम किसी को ये सारी चीज़ें गाइड करते हैं या फ्राहम कर देते हैं, उसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट या कोई ऐसी चीज़ वो बना भी लेते हैं, तो फिर उसके लिए मार्केटिंग का इशू आता है कि जी अब हमने बना तो लिया, आपके कहने अब इसको बेचिए कहाँ। तो ये जो सारा प्रोग्राम है, यानी फ्रॉम डायरेक्शन के जी आप क्या करें, उसके बाद कैसे करें, उसके बाद रॉ मटेरियल की फ्राहमी और मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म, ये सारा काम जो है हम खुशहाल पाकिस्तान पे कर रहे हैं। हमने एक वेबसाइट की तैयारी की है अभी बनाने की, मार्केटिंग वेबसाइट ऑनलाइन, जिसके ऊपर हम इन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टिंग देंगे। जो भी ख़वातीन हज़रात हमारे साथ खुशहाल पाकिस्तान के प्रोग्राम में होंगे, जिसका ये दराज है, बिल्कुल इसी तरह की एक वेबसाइट हम बना रहे हैं, ईद पे लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। तो उसका मकसद सिर्फ यही है कि जितने भी लोग हैं जो अपनी प्रोडक्ट बनाएं या सेल करना चाहते हैं, तो वो सारे उस पर अपने अपने वो बना लें, अकाउंट्स बनाएंगे और हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी फैसिलिटी देंगे। अरे वाह, ग्रेट। बल्कि जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनमें स्पेशली जो कि लेडीज़ भी हैं, बिकॉज वही बात कि एक्सेस मुश्किल हो जाती है लेडीज़ की, तो वो ज़रूर ज्वाइन करें इस वेबसाइट को। और सर, आप इस सब जर्नी में आपने जब स्टार्ट लिया और अब कितने साल का ये ड्यूरेशन बनता है आपका? अभी जो खुशहाल पाकिस्तान का प्रोग्राम है या जो खुशहाली की दस्तक के नाम से वाइसी, इसको तकरीबन 3 साल हो गए माशाअल्लाह। और 3 साल में मैंने कोई 50 के करीब ऐसे काम, कारोबार और उनकी फिजिबिलिटीज़ दी हैं अपने लोगों को, जो कि पहले से पाकिस्तान में नहीं होते थे, लेकिन उनके वसाइल मौजूद हैं। और जो हम बड़े आराम से 1-2 माह की ट्रेनिंग से अपने लोगों को वो सिखा सकते हैं और उनको इस पे लगा सकते हैं। और अभी 3 साल में ये हुआ है कि तकरीबन जो आप समझें कि दर्जनों लोगों ने ये काम शुरू किए हैं, और अभी इंशाल्लाह पाइपलाइन में सैकड़ों लोग हैं जो इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। माशाल्लाह, नो डाउट सर कि आप जो काम कर रहे हैं और जिस तरह से ये सोच का एक जर्नी लेके चले हैं, वो हम अपने इस प्रोग्राम में तो उसको वैसे भी समराइज़ नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। बट हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि हम मैक्सिमम जो है वो आपकी सोच सब तक पहुंचा सकें। सर, एंड में मैसेज क्या देना चाहेंगे? आपके तो बहुत से मैसेज बनते हैं, यूथ के लिए अलग मैसेज बनता है, उन लोगों के लिए जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके हैं, उनके लिए भी मैसेज आप। देखिए जी, सबसे पहला जो मेरा मैसेज है सोसाइटी के लिए, वो ये है कि मुस्बत सोचना शुरू करें। अगर हम एफर्ट कर रहे हैं सब मिलके आगे बढ़ने की, तरक्की कर रहे हैं, तो इस दौड़ में अगर कोई कामयाब है
تو ہم نے اس سے سیکھنا ہے حسد کرنے کی بجائے. ہمیں مثبت سوچنا چاہیے. ہم اپنے لیے اگر گرو کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے. نیگیٹو سوچنا یا نیگیٹو ویز اختیار کرنا اس کو چھوڑنا چاہیے. سب سے پہلے اگر ہم بھی سوسائٹی گرو کرنا چاہتے ہیں تو ہم صرف اور صرف نیگیٹیوٹی کو درمیان سے نکالنا چاہیے. بہت شکریہ سر، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کی مہربانی تھی، آپ نے اس قابل سمجھا. نہیں سر، آپ کی ہمبلنس سے. یہاں پہ آپ سب سے اجازت اسی بات کے ساتھ لوں گی کہ دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، سوچ. ایک سوچ جو ہے وہ آئیڈیا جنریٹ کرتی ہے، اور آئیڈیا جو ہے وہ اسمارٹ ورک کی طرف لے کے جاتے ہوئے ہماری لائف کو چینج کر سکتا ہے. تو اسی بات کے ساتھ آپ سے لیتے ہیں اجازت. انشاءاللہ ملیں گے ہم اور آپ وتھ PNY کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ.